جی احمد گلزار صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہیں. احمد گلزار صاحب آپ کا استقبال ہے. یا آپ مجھ سے سوال پوچھو، میں آپ کو جواب دیتا ہوں. ارے دل خوش کر دیا یار احمد صاحب. کہاں سے ہیں آپ؟ میں پاکستان سے ہوں. پاکستان سے ہے. کون سے والے مومن ہیں آپ؟ دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، اہل نہیں، چوائس ہے، میں کون ہے؟ مسلمان اور ہاں میری یہ بات سن لو کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہوتا. آپ مومن ٹھیک ہے. کرتے ہو، کون ہر سے مسلمان مومن نہیں کون ارے کون سے ہوتا. اہل والے سنت مسلم ہیں آپ؟ اہل سنت والجماعت. اہل اہل سنت والجماعت ہے نا؟ کیا؟ جی جی اہل اس سے ہی ہوں. سنت والجماعت والے مومن ہے نا؟ تو یہ درود جی فاتحہ اور یہ گنڈے تعویذ درگاہ ارگاہ پہ جاتے ہو نہیں جاتے ہو؟ نہیں، میں نہیں جاتا. اچھا تو وہ بریلوی والے اہل سنت نہیں ہیں آپ؟ ہاں، درباروں پہ جا کے جو سجدے کرتے ہیں وہ شرک ہے، وہ غلط ہے. جو چیز غلط ہے میں اسے شرک ہے. غلط کہتا ہوں، جو چیز صحیح ہے میں اسے کہتا ہوں. اوکے تو یہ وہ بریلوی والے اہل سنت والے نہیں ہے. دیکھو گائز اس میں بھی کتنے بائیفرکیشن ہے. اہل سنت میں بھی ابھی مجھے پھر کھود کے نکالنا پڑتا ہے کہ کون سے والے اہل سنت ہے. ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے والے اہل کون سنت ہے کیا سینے پہ ہاتھ باندھنے والے اہل سنت ہے؟ نہیں، جب آپ مسلمان تھے تو آپ کا کون سا فرقہ تھا؟ آپ اہل کون سی حدیث. جماعت سے تعلق رکھتے تھے؟ پہلے تبلیغی تھا پھر اہل حدیث بنا تھا. آپ کدھر ہاتھ باندھتے ہیں؟ سینے پہ باندھتے ہیں ناف کے نیچے باندھتے ہیں؟ احمد صاحب ہیلو، سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں؟ میں ناف کے نیچے. ارے یہ تو ہمارے دیوبندی والے اہل سنت والے یہ. نہیں، میں اچھا اہل یہ بھائی ابھی سنت ہوں، بتائیے. میں ایک دیوبند نہیں ہوں. ایک فلٹریشن اور ہو جائے گا پھر اہل حدیث ہوئیں گے وہ. نہیں آپ سے ناف کے کچھ نیچے دیر ہاتھ پہلے باندھتے تو ایک اہل حدیث نہیں ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ نہیں اہل حدیث آپ تو سے چیسٹ پہ کچھ دیر اپنا ہاتھ پہلے باندھتا ہے. احمد صاحب سنیے میری بات سنیے. چلیے اتنا ہم نے فلٹریشن کر دیا ہے، اتنا کافی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ کو آج کے ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں. رسول اللہ کو 40 سال کے بعد نبوت کیوں ملی؟ اللہ ان کو 40 سال تک بھٹکتا کیوں چھوڑ دیا؟ ان کو بھٹکتا نہیں چھوڑا گیا تھا. آپ ایک بات بتاؤ، آپ یہ لو 9 مہینے کے بعد کیا 5 مہینے کے بعد قرآن 5 مہینے میں پیدا تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے. یہ لو. میں آپ کی بات کر ارے رہا ہوں، آپ کے سوال کا جواب دے. ارے آپ 5 مہینے آپ میں نے پیدا کہا ہو سکتے بھٹکتا تھے؟ ہوا. او بھائی سنو میری بات. جی جی آپ سناؤ. نے یہ کہا کہ رسول اللہ بھٹکتے ہوئے نہیں پھر رہے تھے، ہے نا؟ نہیں، وہ نہیں بھٹک رہے تھے، وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے غار ہیرا میں جا کے. ارے ادھر اللہ کے ارے یار تمہاری بات سچی کہ اللہ کی بات سچی؟ یہ پڑھو قرآن کی آیت کیا کہہ آپ رہی ہے. ادھر پڑھو سے یہ کیا کہہ رہی ہے قرآن کی آیت. زوم کرو. ہیلو. ہاں اور زوم کروں؟ ہاں، اس کا میں یہ لو. مطلب بتاتا ہوں. وہ ہاں اکیلے تھے، ان کی شادی ختیجہ سے ہوئی اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک امیر گھرانے سے تھی، وہ قرآن تاجرہ تھی. کہاں لکھا ہے؟ ان سے ارے میرے شادی بھائی ہوئی، پہلے یہ بتاؤ. مالدار تھے. ارے احمد بھائی پہلے قرآن کیا کہہ رہا ہے وہ بتاؤ. قرآن تو یہی کہہ رہا ہے، نادار ایک پایا منٹ اور پھر سوری مالدار کر ایک دیا. منٹ. ہاں یہ قرآن کی آیت پڑھو. ووجدہ کا ہاں پڑھو. یہ آپ اس کا ترجمہ دکھاؤ. ارے پہلے پڑھو تو صحیح. عربی نہیں آتی کیا کہ میں پڑھ دوں؟ آپ پڑھ دو. آپ کو تو میں نے دیکھا وَوَجَدَكَ تھا کہ وہ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. جی. ترجمہ. اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی. اور پایا تجھ کو بھٹکتا پھر راہ سجھائی. تو اللہ جو ہے 40 سال تک رسول اللہ کو بھٹکنے کیوں دے رہے تھے؟
चलो ठीक है, मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। जब आप पैदा होते हो दिए जी। तो क्या आप हाँ, तभी से चलने लग जाते हो, बोलने लग जाते हो? अरे लेकिन मैं पैदा होता हूँ तभी से चलना फिरना मैं शुरू नहीं करता हूँ, वो तो एक प्रोसेस है भाई, मैं भटका हुआ थोड़ी ना था। ये एक प्रोसेस था, उनको दुनिया के बारे में भी पता चले और बाद में उनको तो भट नबूवत भट मिली थी। अच्छा अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, भटकना किसको बोलते हैं? अभी जैसे कि मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, ठीक है, अच्छा, मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, मुंबई से मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली जाने का एक ठीक है। रास्ता है और एक रास्ता चेन्नई जाने का रास्ता है। मैं चेन्नई के रास्ते पे अगर जाऊंगा तो मैं भटका हुआ हूं क्या नहीं हूं? भटके हुए। तो रसूलुल्लाह भी जो है सीधे रास्ते पे नहीं थे, भटके हुए थे। 40 साल तक क्यों भटका के रखे अल्लाह? उनको तो देखो, आपने कहा चेन्नई में आप जाते तो आप भटके हुए हो, ठीक है। तो आप जब उधर चेन्नई में जाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि मैं भटका हुआ था इधर। फिर आपको कोई बताएगा कि ये असल राह है, इस पे आपने जाना है। हेलो। जी जी बोलते जाइए, आप सुन रहे हैं। नहीं, आपको नहीं कोई सुना, मैं साहिल के साथ लगा। जी जी साहिल ही सुन रहे हैं, बोलिए तो सही आप। चलो आप भी कोई सवाल करो, आप पीछे रह जाओगी, आप भी तो पूछ लो कुछ, मैं आपको भी आंसर दूंगा। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना इल्म है वो मैं जरूर बयान करूंगा। हाँ तो यहाँ पैगंबर की बात हो रही है, यहाँ पे आप साहिल की बात ला रहे हैं। बताइए, आप नबी मैं साहब को साहिल कंपेयर कर रहे हैं आता हूँ। साहिल से, ये तो बड़ा बेकार सी मैं बात कर रहे हैं नहीं, आप जनाब। साहिल खुद है, साहिल खुद कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं जा रहा हूँ और मैं चेन्नई के रास्ते पर जाता हूँ, मैं भटका हुआ हूँ, तो वो खुद फॉर एग्जाम्पल पूछ रहा है मुझसे। नहीं, इस, इससे पहले आप बोल रहे थे ना कि आप 5 महीने के रहे पेट में या 9 महीने का। ये तो आप बताइए, बड़ा गुस्ताखी कर रहे हैं नबी के सामने। क्या क्या मुझे समझ नहीं आई। ऐसे तो ना करें आप। कह रहे आप कंपेयर कर रहे हैं नबी साहब को साहिल से, ये तो आप बड़े गुस्ताखी वाले काम कर रहे हैं साहब। मैं साहिल को कंपेयर कर ही नहीं रहा, वो खुद मुझसे कह रहा है, मुझसे पूछ रहा है। मैं नबी की बात नहीं कर रहा, मैं उसको बता रहा अगर तू हो और तुझे कोई तू ऐसे खुद कह रहा है कि मैं चेन्नई के रास्ते पे जाऊं, मैं भटका हुआ हूं, तो तुझे अच्छा आगे से अच्छा कोई बताए अच्छा। कि तू गलत रास्ते पे है। जी जी, जैसे कि मान लीजिए कि सब मतलब अल्लाह को तो पता था ना कि ये इनको नबी ही बनाना है ना, क्योंकि प्रोसेस तो उनका भी बचपन से ही चल रहा था, फिर भी उनको 40 साल तक क्यों इतना भटकना पड़ा? रिलीजन वो डायरेक्ट उसी आपका लाइन पे क्यों रिलीजन नहीं ला दिए थे उनको? तो अपना रिलीजन बताओ जी, आप। हम अपना एक्स मुस्लिम रिलीजन हैं। बताओ आप। हम एक्स मुस्लिम हैं। आप सब एक्स समझे ना? मुस्लिम हो? जी जी, नहीं नहीं, यहाँ पे 2 शायद मोमिन है। यहाँ पे 2 मोमिन है। ओ, आप भी एक बात सुन लो, आप मुस्लिमा थी, कितने साल तक थी मुस्लिमा? 23 साल तक। 22 साल। 22 साल तक क्यों थी? आपको जब शुरू से अक्ल और क्योंकि शऊर आया, पता, आपने तभी क्यों इस्लाम को नहीं छोड़ा? 22 साल बाद क्यों छोड़ा? हाँ भाई। क्योंकि जब जागा तभी सवेरा। आप नहीं आंसर दे सकती, साहिल को बुला लो। हाँ, अहमद अहमद साहब, नहीं उन्होंने बिल्कुल, आ मेरी गए आवाज आ हैं। रही है एंजल जी? नहीं, उन्होंने क्या जी जी सही आ रही आंसर है। नहीं दिया आपको, एकदम एकदम जबरदस्त आंसर दिया। जब जागे तब सवेरा, भटकी हुई थी वो इस्लाम में, निकल गई। मुझे ये बताइए ना कि रसूलुल्लाह 40 साल तक अच्छा क्यों तो भटकते रहे? मैं आपको आंसर देने लगा था, आपने कहा था मैं चेन्नई में हूँ और मैं भटक गया हूँ, तो आगे से आपको कोई आकर किधर? कहे तुम गलत रास्ते पे हो, तुम्हारा रास्ता ये नहीं है, हाँ तुमने उधर को जाना है, तो हाँ फिर क्या करते आप? हाँ। अगर मेरे को 40 साल के बाद अगर कोई सही रास्ता बताए, हालांकि जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक तुमको एग्जांपल देता हूं, बहुत गौर से सुनना, ठीक है? मुझे जाना था दिल्ली, ओके? अच्छा, सुन रहे हैं अहमद भाई? ठीक है।
हाँ बहुत जी, गौर सुन रहा से हूँ। सुनना। मुझे जाना था दिल्ली, ठीक है। जी जी, सुन रहा हूँ। मुझे पता नहीं है दिल्ली मतलब रास्ता क्या है। मैं चला गया चेन्नई के रास्ते पे, ठीक है। अब एक ठीक है। बंदा है जिसको चेन्नई का रास्ता पता है और वो मुझे बता भी सकता है कि ये चेन्नई का रास्ता है, लेकिन 25 साल तक वो मुझे गलत रास्ते पे चलने दिया। और लेकिन देख रहा है वो कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, ठीक है। लेकिन 25 साल तक मुझे गलत रास्ते पे चलने दिया। 25 साल के बाद मुझे कहता है मैं तुझे भटका हुआ पाया, तुझे जाना था दिल्ली, तू जा रहा था चेन्नई, ये देख दिल्ली का रास्ता यहां से है, इधर से जा। मुझे बताओ भाई, मेरे 25 साल खराब हुए क्या नहीं हुए? 25 साल उस में मैं 25 क्या क्या कर सकता था दिल्ली में जाके। पूरा चेन्नई देखा, फिर उस 25 साल में चेन्नई हाँ, को देखा, उसको समझा। आवाज गई तुम्हारी। आप चेन्नई में खोए थे ना, आपने चेन्नई को फिर समझा, 25 साल उसको समझा, हाँ, उसके बाद तो मेरे आपको काम की किसी ने नहीं ना बता दिया। चेन्नई। अरे लेकिन चेन्नई मेरे काम की नहीं थी, चेन्नई मेरी मंजिल ही नहीं है। मेरी मंजिल दिल्ली है, वो मेरी काम की चीज है। मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे इंजीनियरिंग करना है। मेडिकल की स्टडी मेरे क्या काम की। आपको एक मैं बात कहता हूँ, बल्कि नहीं, मैं आपको आपकी बात का खत्म, जरूर आंस दूंगा। आप इतना लो कि मैं खत्म हो गए आंस नहीं दूंगा। नहीं, मैं नहीं तुम्हारा खत्म आर्ग्यूमेंट, होता। खत्म नहीं नहीं, आप मेरी तुम्हारा पूरी बात आर्ग्यूमेंट तो, खत्म। आप तो बहुत एक्स मुस्लिम बन रहे हो, बहुत सवाल करते हो। आपके सवाल सुन के मैं आपके पास आपको आंसर देने के लिए आया हूँ। तो जवाब दो ना फिर। तुम्हारा आर्ग्यूमेंट तो मैं खत्म हो गया। 40 साल तक क्यों भटका के रखा अल्लाह ने? कुछ देर पहले आपसे, मुझे नहीं पता उसका नेम क्या था, आपसे उसने आपसे पूछा कि मरने के बाद क्या होता है। आपने कहा कि जानवर भाई जब मर भाई भाई जाता है भाई, तो ओ हो, सुनो सुनो सुनो। मरने के बाद क्या होता है ये सब आप टॉपिक चेंज नहीं करो। सवाल ये है, मैंने आपको क्यों एक क्यों एग्जांपल दिया आपके और पास क्या आपने आंसर सुनी नहीं नहीं। है? अरे आप, मेरे, अरे आपके मेरे पास भाई, आंसर नहीं है? सुनो मेरी बात सुनो। मेरे प्यारे भाई मेरी बात सुनो। जी, सुनाओ आपको मैंने एक ऐसा एग्जांपल दिया सुनाओ, ना मैं जो सुन रहा आपके हूँ। भेजे में जा चुकी है और आपको पता चल गया है कि इसका आप, मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। आपने इसके लिए आप मरने पे जानवर का क्या होता है ये सब बोल मैं रहे हो। कह ये बताइए कि दूंगा, रसूलुल्लाह मैं को कह 40 साल दूंगा। भटका के क्यों रखा अल्लाह ने? उसने कहा था कि मैं नहीं दूंगा, मैं कह रहा हूँ मैं दूंगा जवाब, तो दो। मैं साहिल, दूंगा इनसे जवाब। आप कहें क्यों आप टेंशन कि ले रहे हम हैं? मैं सिर्फ भाग नहीं टॉपिक रहा पे ही उसकी बात तरफ कि मैं करेंगे। बंद कर दूंगा, मैं जवाब 40 साल के अल्लाह की तरह 40 साल के बाद दोगे क्या? पनवेल भी निकलना है ना सुबह। सुबह पनवेल भी जाना है, 40 साल के समझ बाद गए क्या जवाब बोल। दोगे क्या? आपकी आवाज नहीं सही आ रही है। इन्हें बोल दीजिए कि टॉपिक पे बात करनी है, बाकी कुछ नहीं। आपका आपका इंटरनेट खराब हो गया है। नहीं, आप उनकी भी पूरी बात सुनी, मेरी भी पूरी बात सुन लो ना, मेरी पूरी बात सुन लो। सुनते क्यों हाँ नहीं हो फिर? बोलो। अपने अंदर टॉपिक है आपका, बताता हूँ आपका टॉपिक है, हाँ, लेकिन टॉपिक में कुछ और भी ऐड हो सकता। आपसे मैं वही पहले पूछ रहा इस हूँ, सवाल आपने का उससे पूछा कि जानवर जब, मैं अरे आपको भाई दूंगा, मैं जानवर कौन को सा छोड़ो भाग रहा ना हूँ? आप सब्र यार। क्यों नहीं करते? नहीं, पहले अभी क्यों आपने आपने उसका, आपने उसने नहीं था, आपने इस उसके टॉपिक पास पे आंसर बात, नहीं था, उसने लीव कर दिया। मेरे पास आंसर, मेरे भाई थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाओ, मेरी बात सुनो। उसके पास आंसर नहीं था, वो दूसरे टॉपिक पे बात कर रहा था, वो एक अलग मसला है। उसने कह दिया था कि मुझे ये टॉपिक पे बात नहीं करना है, ठीक है। आप आके इस टॉपिक का दिफा कर रहे थे। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, कुरान की आयत बताई, आपका टायर जो है हो गया है पंक्चर। अब आप चाह रहे हैं कि मैं यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। क्यों जाएंगे? इस चीज का जवाब दीजिए ना। मैंने आपको तो मिसालें भी दी। अगर जवाब नहीं है तो बोलिए कि नहीं, हाँ अल्लाह को जो है वो, अल्लाह ने गलत काम किया, अल्लाह जो है वो सो रहे थे, अल्लाह का प्लान ही फेल था, 40 साल तक भटका के रखा रसूलुल्लाह को। पहले इसका जवाब दे दीजिए ना भाई अहमद गुलजार साहब। आप, आपको आंसर देने लगा हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो? आप बाकी नबियों पे यकीन रखते हो?
बताओ। जो बाकी नबी थे उनको भी तो नबूवत क्या पैदा होते ही तो नहीं मिल गई थी? क्यों ईसा अलैहिस्सलाम बच्चे में बोलने नहीं लगे थे? नबूवत पहले नहीं मिल गई थी? तो हज़रत बच्चे थे क्या तभी उनको नबूवत मिल गई थी? किसको? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। किसको? मतलब अल्लाह पहले से ही ढिल्ले हजरत काम कर मूसा रहा है। क्या क्या? अल्लाह पहले से ही ढिल्ले काम कर रहा है, पहले से ही ढिल्ले है अल्लाह। आपका सिर्फ एक आपने ईसा इस्लाम को अलैहिस्सलाम छोड़ पे, दिया। सुनो मेरी बात सुनो आप इस सुनो को concept नहीं है। सुनाओ सुनाओ। भाई, एक तो आपके बैकग्राउंड में बच्चा रो रहा है, दूसरा आपकी आवाज कट रही है। मेरी मेरी बात सुन लो। आप कह अरे रुको ना भाई, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ हजरत ईसा के टाइम पे अल्लाह जो है ना वो एकदम चौकन्ने थे, पैदा होते साथ ही नबी बना दिए। बाकी मूसा के टाइम पे भी ढीले थे अल्लाह, और मोहम्मद साहब के टाइम पे भी ढीले थे। आप ये कहना चाह रहे हो अहमद भाई? जी अहमद भाई। वो सब जो भी नबी था वो सारे इंसान थे, वो कोई और मखलूक नहीं थी। हाँ। वो इंसान थे, उन्होंने भी दुनिया को समझना था, दुनिया को भी साथ लेकर चलना था। क्यों लेकिन पर वो भटके सिर्फ भटकते दीन को ही क्यों रखना था? दीन का कह दिया जाता तो उनको तो दुनिया तो का नबी पता ही नहीं बनने के चलता। बाद कौन सा वो दुनिया से अलग हो गए? अरे भाई, अच्छा, तो मतलब नबी अल्लाह बनने के दुनियावी बाद कौन सा वो तालीमात नहीं दे दुनिया से सकते थे? अलग हो रहे थे? हाँ वही तो सही रास्ते पे रख के भी तो दुनिया की तालीमात दे सकता था अल्लाह, भटका के क्यों आप रखा इस बात पे 40 तो साल यकीन तक? करिए हो ना, आपके पास थे ना, क्या उनकी ग्रेव्स भी हैं अभी भी। बाकी नबी थे क्या ना। ग्रेस है? 1,24,000 पैगंबर आए थे दुनिया में, उनकी कब्रें भी मौजूद तो हैं ना। कहाँ मानते पे हो है? ना? वो कैसे 1 लाख मौजूद हैं? भाई, ओ भाई 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 भाई, सुनो 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 हम सुनो 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 मेरी बात सुनो। अभी मैं बच्चे की साउंड आ रहा है। इन्होंने कहा, एंजल जी और ये अब्दुल्ला भाई, इन्होंने कहा 1,24,000 नबी आए, उनकी कब्रें दुनिया में मौजूद है। कहा अब्दुल्ला भाई, आपने सुना? जी 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 बिल्कुल। नबी एंजल आए जी इतने ने ये सुना। सुना, लेकिन कब्र के बारे में नहीं सुना। अच्छा, नहीं मेन नहीं, चीज आप बोले नहीं बोले सुन पाते कब्रें भी मौजूद है। हो नहीं नहीं, कब्रें भी ये मौजूद है, हदीस बोले। है कि 1,24,000 नबी, मतलब नबी इस जमीन पे आए हैं, लेकिन कब्रों के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा गया है कहीं। कहा कहा उन्होंने कहा, ठीक है, मैं कहा, उनको थोड़ा मौका सा दूंगा। अरे स्लाइड ओके गाइस। 10 सेकंड उन्होंने पीछे करके सुन लीजिए। अरे उन्होंने अच्छा, कहा, लेकिन 10 ये सेकंड किताबों में पीछे नहीं है, मैं करके ये आप कह रहा सुन हूँ। लीजिए ना। अरे थोड़ा रुको ना अब्दुल्ला भाई, अभी देखो मेरी बात सुनो। अहमद गुलजार को मेरा चैलेंज है, 1,24,000 जो अंबिया आए दुनिया में, अगर वो उनकी कब्र मुबारक बता दे, मेरे तरफ से 5 लाख रुपए का इनाम। अब अहमद भाई को छोड़ के दुनिया का कोई भी मौलवी, मुल्ला, हाफिज, मुहद्दिस, कोई भी, पहला इनाम 5 लाख रुपया। अच्छा चलो थोड़ा हल्का कर देते, कब्र मत बताओ। 1,24,000 अंबिया के नाम बताने पे मेरे तरफ से 2 लाख रुपए का इनाम। ठीक है एंजल जी? जी ये जी देखो प्रीटी बिल्कुल। की तरफ से भी 5 लाख का इनाम आ चुका है। चलो आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी, पहले ही अपना लग पड़े हो। मेरी तो पहले पूरी बात बोला सुन आपने। लेते। ताहिर भाई आपका कैमरा ऑन है? ताहिर भाई आपका कैमरा ऑन था जी। आपने ये नहीं कहा 1,24,000 अंबिया है, कब्रें मौजूद है? हाँ भाई हर अहमद नबी की भाई। कब्र मौजूद नहीं। अच्छा, हर नबी की कब्र मौजूद नहीं है? किधर पानी में गड़ाए थे क्या हर उनको? नबी नहीं, पानी में दफनाए थे? हजरत ईसा जिंदा आसमान पे उठाए गए हैं। एक माफ, 1,24,000 में से एक माफ, 1,23,999 कब्र बताओ तो 5 लाख, और नाम बताओ तो 2 लाख। मेरा माइक ऑन है या ऑफ है? ऑन है ताहिर भाई। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ अहमद भाई,
ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक माफ आपके लिए। 1,23,999 अंबिया की कब्र बताओ, 5 लाख, और अगर नाम बताओगे तो 2 लाख मेरी तरफ से। मेरी बात सुन लो, अच्छा मेरी बात सुन लो। मैं कोई आलिम हाँ नहीं हूँ, ठीक है ना? ना मुझे कोई मैं सारा ही इल्म है। खत्म हो गई है अहमद साहिल भाई, भाई आप तो खत्म। बहुत दूर चले गए यार, साहिल भाई आप बहुत दूर चले गए। ये 100 का नाम बता दें, 100 नबी का नाम बता दें। नहीं तो फिर इनाम ये कम कौन कर बोल दूंगा रहा मैं, जी साजिद जी, भाई, तो 100 इनाम नबी कम का कर नाम, दूंगा। 100 नबी का नाम बताने पे 10,000 मेरी तरफ से। चलो, रेजी साहब की तरफ से 10 करोड़ आम, 10 करोड़ आम, वो भी बिजनेस करते बैठना। अभी ये कह रहे मैं आलिम नहीं हूं, ठीक है। चलो अहमद भाई, कोई एक आलिम को लेके आओ जो 1,23,999 अंबिया के नाम और कब्र बताए। आलिम के लिए मेरे तरफ से 10 लाख रुपया। चलो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा। आपके हाँ, जो फादर थे, उनका कोई फादर थे ना? उनके भी आगे फादर थे, उनके नाम आपको पता है? उनके नाम ये कहीं बात लिखे हैं? आपने जो लेकिन चीज आपको तो ये साबित बात नहीं कर सकते, सुनो सुनो मेरी बात सुनो, ये मेरी बात सुनो, है ना, बाप का मेरी बाप का बाप भी है। मेरी बात सुनो मेरे भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरे बाप के सुनाओ बाप के सुनाओ। बाप के 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 बाप है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे बाप के बाप के बाप के बाप के बाप के 1,24,000 बाप है। मतलब ये सिलसिला 1,24,000 और वो नबी थे, ऐसा मैं दावा नहीं कर रहा हूं, समझे? तो तुम्हारे सब एग्जाम्पल जो है ना, एकदम पागलपन वाले फॉल्स इक्विवेलेंस होते हैं। जब तुमको कुछ पता ही नहीं है तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हो, और उस दावे से अपना जो झूठा मजहब है उसको सही साबित करने की कोशिश क्यों करते हो? जो इनविक्टस कुरान है, मैक्सिमस कह मेरा रहे हैं मजहब तो चलो सच्चा है, टाटा ठीक है। गुड बाय। किस नबी का नाम है? लेकिन जो आपकी नजर में सच्चा है वो बताओ, जो आपकी नजर में सच्चा क्या है वो बता दो। क्या सच्चा जो है? आपकी नजर में सच्चा है वो बता दो। मजहब कौन अरे जो क्या सच्चा आपको है? सही लगता है? पहले मजहब, तुम ये गंदगी से, रिलीजन। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। पहले इस गंदगी से बाहर निकलो और खुद तलाश करो। अगर मैं ही सब बता दूंगा तो तुम क्या करोगे? खाली हम खाओगे? आपके दिल पे और मोहर ये लग भाई चुकी साहब है। इतने ही देर में कितने सारे क्वेश्चन ऐड कर चुके हैं, समझ में आ रहा है? कभी ये यहाँ से जवाब नहीं उठाकर दिए कि वहां ला रहे, 40 कुरान कभी साल, पढ़ा वहां है, से हदीसें उठाकर अगर वहां पढ़ी ला ये रहे। हैं जवाब, एंजल जी, ये तो ये इनसे अभी तक पूछिए, जवाब नहीं दे इन्होंने पाए कुरान कि पढ़ा है तो रसूलों का नाम, नबियों का नाम देखा है कुरान में कितनी जगह है? साहिल आप लोग अगर एंजॉय कुरान में करें, और मेरा मोबाइल डॉन है, ठीक का है? नाम, ओके एंजल जी, बहुत पैगंबर का शुक्रिया नाम आप जुड़ी। लिखते, अल्फाज और बाकी जो वर्सेस थी वो कहाँ लिखते? थैंक यू। लाइट आता है तो फिर देखते हैं। ओके, ओके, देखिए मौका मिलेगा तो जुड़ बाय। जाइएगा। बाय। हाँ ओके अहमद ओके। साहब, 40 साल तक रसूलुल्लाह क्यों भटके हुए थे? आपने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया हम सबको। आप काफिर हो चुके हो, आपके मोहर लग चुकी है। इंशाल्लाह we will see in the day of judgment. You will go to Jahannam and I will go inshallah with the rahmat of my Allah. I will be in Jannah. ओके, चलो व्हाट ये यू विल फैसला गेट हो इन गया, जन्नत? या फैसला हो नहीं, गया। एक मिनट, एक मिनट। टाइम है, एक मिनट। बड़ी फटाफट फैसला, इतनी जल्दी तो अल्लाह भी ना करता फैसला। ये एक तो ये बात बताए कि इधर मोहर लग गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, क्या इंग्लिश बोले, एकदम फाड़ू इंग्लिश, एक नंबर है अहमद भाई, दिल खुश कर दिया। आपके लिए पप्पी। अच्छा अहमद भाई, अहमद भाई ये बताओ, बाय द ग्रेस एंड रहमा ऑफ योर अल्लाह यू विल गो टू जन्ना, व्हाट यू विल गेट इन जन्ना? I will get everything I want. What is the And you most will important get thing? Allah Ahmed of bhai, Allah. listen to me. Half Ahmed bhai, of listen to me. Allah will be. What Yeah, is the I'm listening best you. thing? What is the best thing you will get in Jannah?
बेस्ट थिंग ये है कि मैं अपने प्यारे नबी से मिल सकूंगा, हिंदी उनके में आ उनका गए? दीदार कर हिंदी सकूंगा। उर्दू नहीं, हिंदी उर्दू नहीं भाई। आपको चलिए 17 रुपया मैंने दिया, इंग्लिश में बात कीजिए। 17 का सुपर स्टिकर मेरी तरफ से। इंग्लिश 17 रुपये की और इंग्लिश। Best prize is I will be talking with my lovely Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is the अच्छा, ये biggest बताएं, prize ये of my बताएं life. कि अगर आपको वहाँ कोई हूर ना मिली फिर क्या क्या होगा? अगर वहां जाके आपको मालूम हुआ अल्लाह के यहाँ तो हूरें होती ही नहीं, तुम्हें किसने कहा यहाँ हूरें होती हैं? फिर सत्यानाश, क्या होगा? पूरा वजह किरकिरा जन्नत का। वो अल्लाह कहेगा वो तो सब जहन्नम में है। पूरा मजा किरकिरा जन्नत का। अगर हूर अगर माइनस कर दे तो पूरा मजा किरकिरा। अच्छा अहमद भाई, अभी एक एक्स मुस्लिम से बात कर रहा था कुछ देर पहले, मैंने उससे पूछा कि तुझे किसने बनाया है, कहता हमें किसी ने नहीं बनाया, किसी ने किसी को नहीं बनाया, नेचर का है सब कुछ। अच्छा अहमद भाई, अहमद भाई सुनो ना, अच्छा सुनो ना अहमद भाई मेरी बात सुनो ना। जन्नत में जो तुमको हूर मिलने वाली है, जन्नत में जो हूर मिलेगी तुमको, उसका क्या करोगे? मुझे कंफर्म नहीं है मुझे मिलेगी कि नहीं, बट मुझे जन्नत मिल जाए और जन्नत में मेरे प्यारे आका से मेरी मुलाकात हो जाए, इससे मुझे कुछ और ना मिले ना। आका से अरे भाई, आका से मुलाकात का मौका कहाँ मिलेगा? तुम 70 साल तक हूरों को पेलोगे। साहिल भाई, हाँ ठीक है अब्दुल्ला भाई बोलिए। अरे आप रसूलुल्लाह से तो मेरी बात सुनिए अहमद भाई, एक बात सुनिए आप, कि आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की वो एक ख्वाहिश है, लेकिन जो क्रिएटर है, रब है, जो अल्लाह ताला, उनसे मिलने की मतलब उसके दीदार की कोई ख्वाहिश नहीं। उससे तो हर किसी ने मिलना है, तूने भी मिलना है जो तू बोल रहा है। अरे वो भी मोमिन है भाई। आप अल्लाह का मर्तबा जो है घटा रहे हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये। सबसे पहले मर्तबा अल्लाह का, अल्लाह ने हमें दीदार करवाना है अपना जन्नत में इंशाअल्लाह। एक मिनट, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। का कह रहे हैं ना, बोलो अहमद भाई मेरी बात सुनो। रोहन सिंह कह रहे हैं पापा रजीत नमस्कार रोहन साहब नमस्कार, बड़े लेट पधारे आप। ओके इनके आगे झुक जाओ। हाँ सुनो, अरे भाई सुनो मेरी बात अहमद भाई, अरे इतना दिल पे नहीं लेते यार, इतनी जलन नहीं होनी चाहिए। सुनो मेरी बात, फिर हो चुके, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से, मैं बस तेरी बातों का आंस देने आया हूँ इधर। अच्छा जितना मुझे पता है, जितना bro yeah bro, listen to me no bro. no Yes, not my bro, you can't say me bro. Why bro? We are not bro. You are my bro. No, you are not my bro. No अब तो कुरान की आयत लाएगा, प्यारा सिखाता है कुरान। भाई आता है मुसलमान के लिए, मुस्लिम के साथ, हिंदू के साथ, किसी और मजहब को अपना भाई बना लो, किधर लिखा है दिखा मुझे। अच्छा ये देखो, पूछो ताहिर भाई। शफी भाई के बाद दूसरा अच्छे बैट्समैन आए। ताहिर भाई पूछो, आप पूछो क्या पूछना है। हाँ जी, मैं अहमद बेटा ये बताएं, आप अल्लामा इकबाल का नाम सुना है आपने? एक मिनट, अल्लामा इकबाल का नाम सुना है? अल्लामा इकबाल को सुना है आपने? आज इनकी बीवी इनको पीटने वाली है ऐसा लग रहा है अहमद भाई को। अहमद भाई केला खाओगे? मेरी एज 17 साल है अभी। अरे केला लोगे? अभी नहीं हूँ, जब कमाने लग गया उसके बाद सोचूंगा। अहमद भाई केला लोगे? बहुत कुछ सीखना भी आपने, आप तो अभी भी बिल्कुल बच्चे ढूंढ लूं। अहमद पिया कह रही है आज इंग्लिश शहीद हो गया। नहीं लेकिन अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं हमारे अहमद भाई। ही इज अ जेंटलमैन, एक्चुअली ही इज अ गुड गाय। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं उनका ब्रो नहीं हूं, कह रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह।
साहिल भाई आशुतोष कितनी कह रहे बॉलिंग 40 खिलाऊंगे आज की इंग्लिश उनको, और बोला उससे भाई। हाँ अरे कितनी बॉल पटकूंगे आज उनको। और पटक ले, रुको ना, उनको आने तो दो। अहमद भाई की वजह से 5000 प्लस लाइव व्यूवर्स हो गए अब्दुल्ला भाई। जी 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 जी। देखो ये अहमद भाई का कमाल है। अहमद भाई सो तो नहीं गए? साहिल भाई आपने केला उठाया अभी तो टेढ़ा, इसीलिए वो नहीं तो बोले। ये अहमद चल अहमद चला गया, तकलीफ होगा इसके लिए बोलती मत। टेढ़ा केला नहीं चाहिए अहमद को। ओके भाई सीधा कर देता हूं, अभी चाहिए। ओ बाप रे बाप, 12 बजने में अभी 19 मिनट बाकी है यार। ओके हम लोग अहमद भाई का इंतजार करेंगे। पाका कह रहे हैं ब्रो। अरे यार सच्ची में पूरी थकान उतार दिया इसने अपने, अहमद ने। इंडियन जी कह रहे सारे मोमिन अपने नबी की तरह जाहिल क्यों होते हैं? लेट्स मॉन्ग कह रहे अहमद भाई मस्त है, साहिल भाई फिसल गए। अरे नहीं भाई, लड़कों में मैं नहीं फिसलता हूँ। कितने भी मस्त रहने दो। ओ बाप रे बाप, हद है भाई, हद है कसम से। देखते और कोई धुरंधर कोई मिलता है क्या हमारे पास? हुसैन भाई कोई है, देख लेते कौन है। हुसैन भाई आपका साहिल भाई इस्तकबाल मैं है। इजाजत चाहूंगा साहिल भाई। हाँ अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छा लगा, आप आते हो तो अच्छा लगता है, आते रहिए। थोड़ा सा थोड़ा मैं अपडेट करना चाहता था, लेकिन अब आपसे मैं कल या आप जब भी आपकी नेक्स्ट स्ट्रीम में एक तरफ बात करूंगा, अभी थोड़ा मैं इजाजत चाहूंगा। ओके अब्दुल्ला भाई। ठीक भाई, ओके शुक्रिया। शुक्रिया। हुसैन साहब आपका इस्तकबाल है। अच्छा साहिल भाई, इसके पहले जो साहब थे, अब्दुल्ला भाई नहीं ना थे, जो नमाज के बारे में कह रहे थे, मैं नहीं पढ़ता। ये है ताहिर भाई है। जी जी, मैं नहीं पढ़ता। लेकिन नमाज के जी बारे जी। में तो कहा गया है कि उसको पढ़िए, और जो अगर बच्चे ना पढ़े तो उसको मारो पीटो, यहाँ तक हुक्म दिया नहीं, गया है। अरे ये कुरान वाले अहले किस चॉइस आयत के में ये कहा साजिद गया? भाई। कोई कुरान की आयत तो उसको बताएं नहीं जिसमें मानते कहा गया नमाज पढ़ो। ये साहिल को पता है, साहिल जानता है काफी मजहब के बारे में, अरे इस्लाम के बारे में। साजिद भाई ये अहले चॉइस, अहले प्रो चॉइस है, आते साथ ही बोल दिया मैं अहले चॉइस हूँ। हाँ जी। नहीं नहीं, देखो ना, मैं तो आपको पहले मैंने आपसे पूछा है कि आपने पूछा नमाज पढ़ते हैं, मैं कहा नहीं, तो हाँ। फिर आपने शायद पूछा क्यों, मैंने कहा मुझे कोई आयत बता दें कुरान की जिसमें लिखा हो कि हाँ। नमाज पढ़ो। अकीमुस सलात हाँ। तो है, उसका मतलब नमाज पढ़ना तो नहीं है। हाँ वही वो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर देते हो, जो अहले चॉइस होते हैं ना या अहले कुरान, वो जी पूरा जी, नमाज का पूरा सत्यानाश कर देते हो, वो तो है। सही बात है। और नमाज जो हदीसों में है मिलता है साहिल भाई, हदीस हदीसों में हदीस मिलता में है, तो कुरान में नहीं हदीस में मिलता। तो बड़ी, अकीमुस सलात है, नमाज को कायम जी करो, जी, देखिए यहाँ हदीस में तो आपको अरे पता है अफसाने भी बहुत है, हदीस में ज्यादातर अफसाने साजिद हैं। भाई, हजार साजिद भाई हदीसें। मेरी बात सुनो। साजिद भाई ये जो अहले कुरान होते हैं ना या अहले चॉइस होते हैं, वो सलात का मतलब नमाज लेते ही नहीं है। जो हम नमाज बोलते हैं ना वो मतलब लेते ही नहीं है। तो तुम उनको कुरान से कितना भी सलात सलात बता दोगे, वो बोलेगे ठीक है सलात कायम करना है, वो नमाज नहीं है वो। और वैसे भी नमाज का जो है तरीका कुरान में तो है भी नहीं, बिल्कुल। जी जी जी। है ना। तो ये सब चीजें हमारे ताहिर भाई के लिए नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। चेजर कह रहे हैं सर एमडी साहब न्यूटन जितना ना लाइकी उतनी कामयाबी। गणेश जी कह रहे हैं अहमद अनदर इमरान। अरे नहीं इमरान के उतना नहीं था, इमरान तो बड़ा कमीना था जो बंदा आया था। राजा जी कह रहे 40 साल तक, हाँ 40 साल तक सेक्स का आनंद ले रहे थे। एक मिनट देखिए आप, इतना ये जो जिस इससे आए थे हमारे अहमद भाई, आ गए ओ भाई। इनविक्टस मैक्सिमस कह रहे हैं एलए चॉइस क्या, एलए चॉइस क्या होता है? एलए चॉइस या एलए चॉइस मतलब वो चॉइस पे चलता है, उसके नजदीक जो है वो कोई जो, हाँ अकल नहीं, मतलब जो चीज को मानना है हाँ बोलेगा, जो चीज को नहीं मानना है वो कितनी भी सही रहे वो बोलेगा नहीं मैं नहीं मानता हूँ इसको।
एक्स मुस्लिम मुल्हिद कह रहे हैं साहिल भाई मेरे जाटों के नाम वाला सुपर चैट पढ़ दे प्लीज, मुझे जानना है उन जाटों का नाम जो सवारी किया था रसूलुल्लाह को। नहीं भाई ऐसे नहीं भेजो प्लीज। हाँ भाई अहमद साहब जी बोलो। अरे केला देख के आप कल्टी मार लिए। जी जी केला देख के कल्टी क्यों मारे? हेलो, मैं गलती नहीं, मेरा मोबाइल अरे बंद मैं हो गया था, बोल- चार्जर लगाया अब। अच्छा केला चाहिए था आपको? नहीं, आप इसके काबिल हो। आपको केला नहीं चाहिए? केला नहीं है आपके पास? नहीं आप काबिल हो। आप केला काबिल हो नहीं। इसके। साहिल भाई लाला जी आ गए हैं। किधर है लाला? स्टूडियो में तो नहीं है लाला, रुको जगह बनाता हूँ लाला के लिए। अच्छा ये अपना क्या नाम है अहमद भाई, मुझे एक बात बताओ कि आपने कहा कि भाई मैं ना रसूलुल्लाह को बोल, देखूंगा। तेरा कोई हक नहीं मुझे भाई बोलने का, कोई हक नहीं मुझे भाई बोलने का। इतनी नाराजगी? तेरे से ये नाराजगी Bro. नहीं है कि तूने दीन को छोड़ा, तुझसे नाराजगी ये है कि तू लोगों का भटका रहा है। तू खुद भटका है तो भटका रहा है, लोगों को क्यों भटका रहा है? मैं तुमको भटकने से बचा रहा हूँ मेरे भाई। वो अपने मजहब में खुश तुम है, 17 साल के हो। चल अहमद 17 साल अहमद का हूँ। भाई मेरी बात सुनो, देखो तुम 17 साल के हो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी सुना। बर्बाद नहीं हो। हाँ सुनो, गौरव कुमार क्या कह रहे हैं? मेरी अहमद बर्बाद भाई नहीं, के मैं दिल पे इस्लाम से अंग्रेजों इतना ने खुश मोहर हूँ लगा दी है। कि तेरी सोच नहीं होगी। हाँ तेरे अच्छा, दिल पे मोहर लग ये चुकी है। सुनो तेरे पास सुनो सिर्फ अहमद इसलिए अहमद आया हूँ कि तू लोगों को भटका रहा है। अहमद मेरी बात सुन। बोल। मेरी बात सुन, क्या ये नाइंसाफी नहीं है कि तुम 17 साल में तुम राहे हिदायत पे हो और अल्लाह ने रसूलुल्लाह को 40 साल तक भटका के रखा? क्या ये नाइंसाफी नहीं की अल्लाह ने रसूलुल्लाह के साथ? वो उनको नबूवत मिली, उन्होंने हमें आगे बताया, हम उनके रास्ते पे चल रहे हैं। 40 साल तक हमें भटका के पैदाइश रखा के ना अल्लाह बाद ने। उनके बाद कुरान के हिसाब से उनसे मैं बड़े आलिम नहीं हूँ, नबी तो ईसा मैं अलैहिस्सलाम आलिम होंगे ना। नहीं हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने गहवारे में कहा था क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी एडम आ जाओ। नबिया। जब हाँ पैदा हुए एडम आ तभी जाओ कह भाई, दिया एडम तुमने जगह अल्लाह बनाओ, की जल्दी आओ एडम 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 जल्दी आओ एडम एडम जल्दी आओ एडम। एडम रसूल एडम आ गए। चलो मेरे को थोड़ा आराम मिलेगा, अभी मैं आराम करूंगा। इसे मैंने कहा बोल मेरा रसूल आदम अलैहिस्सलाम थे, ये टट्टू है सिर्फ। अच्छा एडम एक चीज बताता हूँ, ये 17 साल का बच्चा है भाई, थोड़ा आराम अरे से। यार मुझे तो ये पूरा पाकिस्तानी भाई लग रहा है अपना। पाकिस्तानी भाई है? पाकिस्तानी है लेकिन अच्छा भाई है। भाई मत बोल, भाई नहीं है हम लोग उसके। नहीं भाई नहीं है, ओके मैं पाकिस्तानी बोल दोस्त। भाई ना बोलना, अपने दोस्त? साथ मुझे भी जहन्नम में घसीट रहे हो। अरे वाह रे वाह, सच्चा है तू, सच्चा है रे, सच्चा है रे। तू देख लेगा एक दिन, तू देख लेगा। एक दिन कब देखेगा? डे ऑफ जजमेंट एंड इन द ग्रेव। इन द ग्रेव। Where अच्छा will ग्रेव, you be अच्छा burned? आगे क्या Burned ग्रेव with की the बात। hottest भाई fire. भाई 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 ग्रेव की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्रेव। अच्छा आपके अंदर से जब आपकी मौत होती है, किसी की भी मौत होती है, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी आपकी किसी की भी, तो रूह अल्लाह ने निकाल ली, राइट? फरिश्ता आया, वो रूह निकाल के ले गया, राइट? राइट। ओके, अब आपकी जो मांस बोटी है वो डाल दी गई ग्रेव में। हाँ वो चिकन, वो जो आप कह ले चिकन है या गाय का गोश्त है, कुछ भी कह ले आप, वो एक बीफ स्टेक है, ठीक है? अब वो बीफ स्टेक रह गया है, मांस बोटी रह गई है, वो आपकी डाल दी ग्रेव में। अब आपकी ग्रेव में मांस बोटी डाल दी गई है, अब उसको कीड़े खाएं या उसको क्या हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रूह तो निकाल ली अल्लाह ने, तो ग्रेव का अज़ाब कैसे होगा, पहले ये समझाए। ये तो जब मरेगा ना, तेरा जिस्म फिर से बनेगा। अगर तू ये सोचता है कि तुझे अरे जला दिया जाएगा, सही तू नहीं, फिर तो देखिए, खत्म। हजरत सुने देखें, पहले समझने की कोशिश करें। जो आपको मांस बोटी मिलनी है वो डे ऑफ जजमेंट को मिलनी है, ठीक है? मैं डे ऑफ जजमेंट की भी बात नहीं कर रहा, मैं डे ऑफ जजमेंट की बात नहीं कर रहा। सुने जरा, एक बात बता, तेरे लिए एक बात है साहिल, एक बात बता यार, तेरे लिए स्पेशल।
यार टॉपिक चेंज नहीं, टॉपिक चेंज नहीं यार, रुक रुक रुक, अरे रुक, 17 साल के दोस्त रुक, पाकिस्तानी रुक, दोस्त भी ना बोल, दोस्त भी ना बोल, 17 साल के दुश्मन रुक, पहले ये बात कर ले जरा। देख तूने कहा कबर का अजाब, तेरा मैंने दुश्मन कहा, नहीं है, बेटा अरे यार सुन ले, 17 साल के जिहादी सुन ले, कबर में अहमद रूह अहमद नहीं अहमद है। बोल दो। अहमद यार नाम नहीं नजर आ रहा मुझे। कब्र में रूह नहीं है तेरी, रूह तो अल्लाह ने ले ली, कब्जे में कर ली, तो अब कब्र में अजाब किसको मिल रहा है वो बता। वो दोबारा तेरे जिस्म में डाली जाएगी, डाली पर जाएगी, वो अल्लाह आर के यू हुक्म श्योर? से तू खुद कुछ नहीं कर सकता उधर, ना मैं तू खुद ये नहीं- कर सकता है मैं मिट्टी खोदूंगा, मैं बाहर आ जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है उधर। तू एक अरे जिंदगी भाई, जी चुका है। अरे भाई सुन 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 सुन, अगर रूह दोबारा मेरे में डाल दी तो फिर तो मुझे सांस भी आनी चाहिए, क्योंकि सांस चलती तेरी ही तू रूह से है। दुनिया से खत्म, दुनिया में तू सांस लेता था, दुनिया से तेरा सिस्टम ही खत्म, तेरा तो कॉन्टेक्ट वही तो कह रहा हूँ, खत्म। तो रूह निकाली तो सिस्टम खत्म हुआ ना, जब रूह दोबारा डाली तो सिस्टम वापस आना चाहिए। तू आयत सुन मुझसे, सुना सुना काफिरों को सुन, कुरान की सूरत और आयत काफिरों दोनों को उठा के सुनाई। काफिरों को दुनिया की जिंदगी भली लगती है, वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान लाए, हालांकि जो लोग परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन इनसे बालातर होंगे और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। ओके, अल्लाह बेहिसाब रिज़्क देता है। हाँ, बेहिसाब देता है। अच्छा, इस वक्त जो किसको बेहिसाब रिज़्क देता है भाई, ये बता दे, मुसलमानों के काफिरों को? काफिरों को भी देता है, पूरी जो नहीं, ये जो पत्थर के नीचे एक सेकंड, ये जो अभी आपने आयत बोली है, इस आयत में बेहिसाब रिज़्क काफिरों को मिल रहा है या नॉन मुसलमानों को मिल रहा है? जिसे चाहे वो रिज़्क देता है, जिसे चाहे वो, इस जिसे चाहे आयत में किसको दे रहा है यार? इस आयत में किसको दे रहा है वो, भाई? जिसे चाहे वो, जिसे चाहे। समझ नहीं आती क्या? अच्छा, यानी काफिरों को भी देगा। क्या? आयत दोबारा पढ़। सुन, सुना। काफिरों को दुनिया की जिंदगी भली लगती है और वो इन लोगों को, हाँ, सॉरी प्लीज कंटिन्यू। और वो इन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो ईमान लाए, हालांकि जो लोग परहेजगार हैं वो क़यामत के दिन इनसे बालातर होंगे और अल्लाह जिसे चाहे बेहिसाब रिज़्क देता है। ओके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, तो काफिरों को तू ना भी अल्लाह बोल, बेहिस तेरा कोई हक नहीं, तू मुर्तद है। अच्छा, मैं मुर्तद हूं तो मैं क्या ना बोलूं? तू ना बोल ना सुभान अल्लाह, तेरे पे अब सूट ही नहीं करता। अच्छा, मेरे सुन, अच्छा सुभान अल्लाह, सॉरी यार, नहीं सुभान अल्लाह, ला सुभान अल्लाह, ठीक यार है क्यों बोलता है, मुझे क्यों बोलता है ऐसा यार? मुझे ला अपना कुछ सुभान भी अल्लाह समझ- यार, ला मीन्स नहीं। 17 साल अच्छा, का एक बात बच्चा सुन, क्या है? अच्छा एक बात सुन, वापस कब्र में जाते सुना? हैं। जब अल्लाह मियाँ के हाँ, जो तू होगा। प्यारे, अल्लाह मियाँ के जो प्यारे नबी हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी, ये जब इसका अपनी मतलब भी कब्र तुझे में है, पता है? इसका मतलब पता है? अल्लाह की सलावात हो मोहम्मद और उसके आल के ऊपर। ठीक है, चले, मेहरबानी, इतना तुझे पता था, तूने आपने दीन प्रूव को छोड़ कर दिया। दिया। अच्छा, चले वापस जाते हैं। तो जब ये नबी हमारे कब्र के अंदर हैं, इस वक्त कब्र के अंदर ही है ना इस वक्त, रोजा मुबारक में, रोजा मुबारक में, वही कब रोज। अच्छा चल ठीक है, जाने देते हैं अरे कब्र ही होती ना भाई वो भी। यार, ठीक है, जाने देते हैं ना यार, इसलिए मैंने कहा जाने तो तू देते हैं। निकालो कब्र मुबारक बोलना, तू भी सिर्फ कब्र बोलेगा तो। ऐसे ही फरिश्ते तेरे दांत निकालेंगे ना, तुझे लगेगा पता। अच्छा चल ठीक है, वो बाद में को देख चला। लेंगे। हाँ चल अच्छा, ठीक है। बात सुन भाई, बात सुन। अब ये आपका नबी कब्र के अंदर है। तू भाई क्यों बोलता है? तू ना बोल, तुझे सुनता अच्छा नहीं सॉरी, एक बार। अरे दुश्मन, अहमद अरे मेरे दुश्मन, अहमद अरे मेरे दुश्मन, अहमद, शैतान अहमद। जैसे शैतान मेरा खुला दुश्मन है, वैसे तू हाँ। मेरा खुला दुश्मन है। ठीक है, जिधर तू मुझे मिलेगा तुझे मार के अरे मेरे दुश्मन भाई, सब्र कर ले यार। अच्छा, तो यार ये आपका नबी कब्र के अंदर हैं और उनका देहांत हो चुका है, जब आप उन पे सलाम भेजते हैं, आप उन्हें कहते हैं अस्सलामु अलैका हय्युन नबी, बोलते हैं? तो अल्लाह मियाँ आपके नबी के साथ क्या करता है? अल्लाह भी उन पे दरूद भेजता है, लगी समझ?
ہاں لیکن اس وقت اللہ نبی کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ درود نہیں، یہاں پہ سلام بھیج رہا ہوں میں، درود نہیں بھیج رہا، السلام علیکہ ایھا النبی. تو جب میں کہتا ہوں وہ ہم السلام بھیج علیکہ رہے ایھا ہیں، النبی، وہ ہم بھیج رہے ہیں اللہ ان پہ، ہاں اللہ جب درود ہم بھیج بھیجتے رہا ہیں، ہے. ارے یار وہی بات کر رہا ہوں، جب میں سلام بھیجتا ہوں یہ اللہ یار آپ کے نبی کے کس سے ساتھ بولتا ہے؟ تجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے کیا نفرت ہوتی ہے تجھ سے. ہاں ہاں کہہ رہی ہو نفرت رکھ مجھ سے یار، بہت زبردست نفرت رکھ. تو یہ اللہ جب آپ کے نبی کے اوپر آپ جب اپنے نبی کے اوپر سلام بھیجتے ہیں تو اللہ آپ کے نبی کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے ہیں آپ کو پتا؟ اوے تمیز سے بول، کھلواڑ کے بچے، آرام سے بول، تمیز سے. ساحل پہ اسکرین پہ دکھائیے گا. میں تمیز سے بول رہا ہوں، تو بھی تمیز سے بول. یہ دیکھیے سر آپ بالکل سر آپ بہت تمیز سے بول رہے ہیں سر، میں معذرت کرتا ہوں سر، ایسے ہی میں مرمرا گیا آپ کی باتوں سے تو کوئی شور ہو رہا ہاں مجھے. سر دیکھیں ساری بول، دیکھیں سر سر ابو بول. ہریرہ حضرت ابو ہریرہ میں اللہ بھی پلیز ود ہم فرماتے ہیں کہ جب کوئی سلام بھیجتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ میاں ان کی روح ان کے جسم میں ڈال دیتا ہے. بول اللہ میاں ان پوری کی پڑھ روح ان کے جسم میں ڈال دیتا ہے پڑھ لی، اور جیسے ہی پڑھ وہ لی ہے. سلام کا جواب دیتے ہیں اللہ میاں روح دوبارہ ارے نکال تو نے دیتا پڑھ ہے. لی ہے، تو تو نے پوری آپ کے پڑھ لی. نبی میری اب آپ سن، کے نبی میری سر سن لیں نا سن. سر چل سر سنا سوال سنیں گے تو جواب لیں گے نا. آپ کے نبی چل سنا. کی آپ کے نبی اپنے روزہ مبارک میں ایک دم سے جیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام یا احمد، اور پھڑک کے دوبارہ مر جاتے ہیں. پھر ایک اور شخص ہوگا اس کا نام ہوگا محمد، وہ نبی کو سلام اور درود سلام بھیجتا ہے، آپ کے نبی میں اللہ دوبارہ روح پھونک دیتے ہیں، نبی پھر اٹھتے ہیں کہتے ہیں وعلیکم السلام یا محمد، اور اللہ میاں تیرے میں دوبارہ روح لوجک کھینچ لیتے ہے، ہیں اور وہ پھڑک کے دوبارہ مر جاتے ہیں. تیرے میں دماغ ہے. نہیں سر نظر بھی آ رہا ہے تیرے میں دماغ نہیں ہے. اب میری پوری بات سن. جی سر سنیں. قرآن کے علاوہ جو باقی بکس ہیں نا، تو یہ سمجھ لے کہ ہر بک میں بالکل ہی سچائی نہیں لکھی جو اچھا ہمیں ہے. صرف قرآن بالکل سچا ترین ہے. باقی جو کتابیں ہیں وہ صحابہ کرام نے لکھی ہیں، ان میں آگے جا کے لوگوں نے چینجنگ کی ہے، لگی سمجھ. اچھا لیکن قرآن میں کوئی نہیں سر کر یہ سکا. کیا لکھا ہوا ہے سر، یہاں پہ کیا لکھا ہوا کرے ہے؟ گا، قرآن کے الفاظ اٹھا لیے سر جائیں یہ گے، سر یہ لیکن حدیث قرآن میں کو کوئی چینج نہیں کر سر سکے یہ گا حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ انشاءاللہ. یہ حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یا سند صحیح. تجھے وہی تو یہ کہہ رہا ہوں، ارے تجھے یہ وہی صحیح تو نہیں کہہ ہے؟ رہا ہوں، تو سمجھ نہیں اچھا یہ آتی. غلط ہے ہر سر، یہ ضعیف ہے تو میری بات تو سن، میں تجھے سر. کہہ رہا میں ہوں پوچھ تیرے رہا ہوں پاس یہ دماغ ضعیف ہے؟ ہے نا. نہیں سر سر میں سمپل سی بات کی ہے سر، آپ کہہ دیں یہ ضعیف ہے. پھر سے بول، تیرے وہ تو نے بولا کیا تھا؟ سر آپ بتا دیں کہ یہ ضعیف ہے، حالانکہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ صحیح ہے، لیکن آپ کہہ دیں یہ ضعیف ہے. کہہ دیں پلیز. تو صحیح بول رہا ہے یا ضعیف بول رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سکرین پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ضعیف ہے. میں حدیثوں کو مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے آگے آ کے چینجنگ کی ہے. تو تجھے کہیں یہ نا کیوں کہ نہیں ضعیف سمجھ ہے، آتی؟ تو پھر بولیں کہ ضعیف ہے. تو کیا ضعیف ہے؟ مجھے تیرا لفظ کا مطلب بھی نہیں سمجھ آ رہا. ارے میرے بھائی اسکرین پہ ایک حدیث تو بتائی بھائی گئی کا ہے. تو بول رہا ہے، تو بھائی کا تو اچھا نہیں دشمن ہے، بھائی نہ بول رہا ہے. ایڈم ایسا نہیں، یہ ہمارے اچھے بھائی ہے، ڈنگر نہیں ہے. نہیں اچھے بھائی ہے، ڈنگر نہیں ہے. ان کو اوکے نہیں اچھے کیونکہ بھائی وہ ٹھیک ہے. ان کو کچھ سمجھانا ہے اپنے کو. یار تو بھائی بول رہا ہے اس کو غصہ چل رہا ہے، اچھا تو بھائی بول سوری، رہا ہے اس کو. احمد بہن ہماری جو ہے نا وہ اچھی بہن ہے. بھائی نہیں بولوں گا میں، ان کو تکلیف ہوتا ہے دل سے، میں بہن بولوں گا. بول احمد بہن، سر بول اچھا سر سنو، بول. اچھا سر احمد سر میری بات سنو. یہ آپ کو اسکرین پہ حدیث اتنا دکھ رہی ہے؟ پاک نام لیتا بھی اچھا نہیں لگتا. اکیلا سر بول. احمد سر تیری سے اسکرین پہ عزت آپ کو کروا. حدیث دکھ رہی ہے؟ میں تجھے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے، لیکن قرآن میں جو تو ہے مطلب وہ ہمارے سچ ہے. پاس ابھی کچھ ہے نہیں، آتھینٹک کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا کیا رسول مطلب؟ جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہو نہ کوئی دوسرا ہم جانتا ہے. اس لیے مسلم ہوتے ہیں نا، وہ ساتھ اس لیے کہتے ہیں واللہ رسول عالم، واللہ اللہ بھی جانتا ہے. یہ اللہ واللہ جانتا ہوگا. رسول عالم، یہ نیا پہلی ہے، بار سنا یہ میں نیا ہے یار، یہ میرے پہلی دفعہ سنا ہے یار. یہ کون بولتا ہے واللہ رسول عالم؟ اس کا تو مطلب سرچ کر. تو انڈیا میں ہے، تو پاکستان میں ہے نا، تجھے سب سنے گا. اچھا نہیں ساری عمر میں پاکستان میں رہا ہوں میرے بچے. تیرا بچہ
तू बदकिस्मत हाँ तरीन सॉरी होगा। सॉरी 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 नहीं, बच्चा नहीं कहना मैंने यार, तेरे जैसा बच्चा होता तो पैदा होते ही मार देता मैं, सॉरी यार, नहीं नहीं तू मेरा बच्चा नहीं है, सॉरी, माय बैड, वापस लेता हूँ मैं अपने अल्फाज। अच्छा हाँ, टॉपिक तू पे मेरे आते सामने हैं। होती ना तुझे मार टॉपिक, देता। अहमद 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 सुन, अहमद मेरे, अच्छा भाई नहीं बोलने का, अहमद भाई सुन। नहीं बोल रहा। अच्छा अहमद, मैं अहमद सुन रहा हूँ, तुमने तू क्या बोल। बोला, अहमद सुनो, तुमने क्या बोला कि जन्नत में तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज ये होगी कि तुम अपने रसूल से मिलोगे, लेकिन अरे मुझे तो ये ये रसूल, बताओ अरे साहिल भाई, इसने बोला ये बात, इसने बोला ये बात, तो वो तो रसूल तो बोला नंगा है। होगा, नंगा होगा रसूल, अरे ये भाई मैं तो आराम रसूल से नहीं आजा बोल बोला मारा। सकता है, मैं तमीज से बात कर रहा, तू भी तमीज से कर, एवं यार। गुस्ताखी ना कर। तू यार इतना ये ही ले बदमाश का ये ले पुत्र है तो मेरे यार, ये देखे ये देखे ये मेरे देखे ये फेस देखे के सामने आके ये बोलना देखे, सर कि मैं सर तू गलती हो सामने गई, बोल। सर गलती, अरे सर या गलती हो गई, तू सर किसी गलती मुसलमान हो के गई, फेस पे बोल। सर तू गलती, किसी सर हदीस पढ़े, और रसूल अल्लाह गलती ने माफ फरमाया नहीं, ये गलती कि माफ नहीं, क़यामत के मुसलमान के दिन, फेस के सामने क़यामत बोल। के, सर एक सेकंड, क़यामत के दिन आप अपने अल्लाह से मिलेंगे नंगे पांव, नंगे बदन, और पैदल चल के, और बिन खतना। तो भाई अल्लाह का रसूल भी फिर नंगा और बिन खतना ही होगा ना, या अल्लाह का रसूल वो खतरे के साथ नहीं होगा, खतरे के साथ होगा और अरे नंगा तू नहीं फिर होगा। वही बात कर रहा है, अरे तू फिर वही बात कर रहा है। अरे हदीस अरे में तू लिखा है ना यार अहमद सर। मैं वही तो कह रहा हूँ, तुझे क्यों नहीं समझ हाँ, आती? बुखारी की क्या हदीस नहीं है। समझ मैं आती? हर चीज तेरा मुझे नहीं पता तेरा मजहब क्या है, जो भी, आई डोंट केयर वट एवर इट इज, ठीक है ना। और क्या उसमें भी इंग्लिश बोलता है यार। हाँ। यार उसमें मैं कहता हूँ जेंगू बंदा है। लेकिन अच्छा मोहम्मद लेकिन की होगा क़यामत के दिन। बोलो नहीं तो पहले तुम बाद में बोलो सारे। एडम बाद में 70 कपड़े पहनाए जाएंगे ना, और उसमें पहले भी फिर नंगा आप, करके बाद। सर वो तो हूरों के 70 कपड़े हैं ना, वो भी 70 कपड़े ऐसे हैं कि आपको उनकी तू टांगों के क़यामत अंदर वाले से, दिन देखना, तू क़यामत वाले दिन देखना, तू कैसे जहन्नम में जाएगा और हम कैसे जन्नत में जाएंगे। तू हाँ वो क़यामत वाले तो दिन हम देखना, क़यामत को छोड़ना। लेकिन उससे पहले मैं इधर आपके तो नबी लोगों को को नंगा कुछ तो देख बता लूंगा रहा है, ना। जो सर अपने उससे दिन के पहले, साथ खुश है तो खुश रहने दे, तो क्यों सर जी ऐसे गुस्ताखी में। उससे पहले मैं आपके नबी को नंगा देख लूंगा ना। तू पागल है, तुझे कह रहा हूँ कि हर हदीस बाद में शायद अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है कि सच क्या है, ठीक है ना। हाँ। सहाबा कराम ने लिखा था, आगे अच्छा जाके क्या पता आपके, लोगों ने अच्छा चेंज किया हो। बात सुने, सॉरी बुरा ना बनाइएगा, आपके वालिद को नंगा देख सकूंगा। अहले हदीस जो होते हैं ना, ये जो साहिल में सुनने लगा मुंह से कुछ, ये अहले हाँ। हदीस था, इसलिए हर एक हदीस पे इसको पता है, ये इसलिए वो हदीसों को ला रहा है अंदर। हाँ। अब इस वक्त तो अच्छा मैं लाया हूँ यार, अहमद, मैं अहले हदीस नहीं था, मैं लाया हूँ ये। अहमद क्या? मेरी बात सुनना, अहमद सुनना, मेरी बात सुन अहमद। हाँ, अगर तुझे हाँ, लग सुना। रहा है कि ये बातें जो हम पढ़ रहे हैं, हम गुस्ताखी कर रहे हैं, तो बुखारी के बारे में और जो सहाबा ने इस तरीके की बात बताई रसूलुल्लाह से मंसूब करके, मेरे तो इनको ज़हन में इनको नहीं क्या है कहेगा कि तू? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुरान के बाद मेरे ज़हन से निकल गई है, कौन सी सही किताब बुखारी बुखारी, सच्ची सबसे थी। सही सही बुखारी, किताब, सही बुखारी, सही सही बुखारी। बुखारी। सही बुखारी। हाँ लेकिन हाँ, बाद में आगे जाके चेंजिंग लोगों ने की होगी, मैं ये भी कहता हूँ नहीं हुई है ना साहब। ये, नहीं अरे हुई, भाई नहीं सही। नहीं हुई है ना ये। और कुरान है सिर्फ जिसमें चेंजिंग नहीं हो सकती, सिर्फ कुरान है, बाकी कोई वो किताब किसने कहा नहीं। है, वो किसने कहा है? मैंने कहा है, सबने कहा है। तेरी बात मान ले हम। कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह ताला करता है। या अल्लाह। अब तो तुम लोगों नहीं, को ये छोड़ देगा, आई विल अहमद वेट। छोड़ देगा, अहमद छोड़ देगा। एडम मैं गारंटी लेता हूँ अहमद छोड़ देगा, इसकी आंखें खुल जाएगी। क्या बोलते हो? अच्छा भाई लग रहा है, आदम। अच्छा भाई लग रहा है। कि तू कितना गलीज है। अच्छा अहमद भाई कहाँ से है वो आप? पीछे जो आपकी पंजाबी की आवाजें चल रही हैं, मुझे लग रहा है आप कोई गुजरांवाला के आसपास के लग रहे हो। मैं पंजाब से हूँ, गुजरांवाला के आसपास से लग रहे हो कोई, लाहौर शेखपुरा के के पास पास हो। शेखपुरा, स्टेडियम पार्क, गंग रोड, हाँ। 3 नंबर के एंड पे रहता हूँ। जिसको भेजना है माशाल्लाह। भेज दो। अरे मैंने क्यों भेजना है तू ना भाई? बोल माशाल्लाह, आप तू लोगों क्यों का बोल मुल्क है रहा है? वो, उसमें तो आप लोग ही लोगों को पुट्टते हो, आप लोगों को आगे पुट्टेगा। तू क्यों माशाल्लाह बोल रहा है? तू हाँ? माशाल्लाह क्यों बोल रहा है? तू मुझे अच्छा माशाल्लाह क्यों लगता बोल है, रहा है? अच्छा लगता है। तू लुगत में ना बोल। नहीं तेरा हक अच्छा नहीं बोलने का, तेरा हक खत्म।
अच्छा मैं सिर्फ है ना, अच्छा एडम ये हमारे अच्छे भाई है। अच्छा अहमद भाई एक काम करना, क्यों आप भाई, नेक्स्ट क्यों टॉपिक भाई पे, बोलने हैं? अहमद साहब आप एक अच्छे इंसान है, ठीक है। आप एक काम करना, आज के टॉपिक पे तो आप बात किए, आपके पास कोई जवाब नहीं था, आप फिर से जुड़ना। मैं कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ कि आपके अंदर जो है वो इंसानियत बची है क्या नहीं बची है। लेकिन ऑलरेडी आपसे इतनी बात कर चुके हैं, जो हमारे दूसरे मोमिन भाई है वो उनके साथ नाइंसाफी हो उनको भाई जाएगी। ना बोल तो किसी मुसलमान को भाई ना बोल। अरे तेरा हक है इस बात वो जब मुझे कहें, सुनो मेरी बात, वो जब मुझे कहेंगे ना भाई ना बोलना, तो नहीं बोलूंगा, ठीक है। मेरे फहद को म्यूट करें, इनके फीडबैक आ रहा है। ये फहद भाई आप यूट्यूब बंद करिए, आपको स्ट्रीम में ले लिया है मैंने, यूट्यूब बंद करिए, आपसे बात करते हैं। ओके अहमद भाई, अहमद साहब आप नेक्स्ट टाइम आइएगा जरूर। मैं आऊंगा कमीने इंसान, जरूर आऊंगा। बात सुने साहिल भी वो अच्छा सर अहमद सुने, कल ना मेरे चैनल पे ना पार्ट 2 है मोहम्मद साहब को जो शैतानी आयतें नाज़िल हुई थी ना उनके ऊपर, आप जरूर जरिएगा, वहां पे जरूर बताइएगा मुझे शैतानी आयतों के बारे में। कौन है तेरे से मोहम्मद साहब ने मुझसे आयतें लेके खुल्लम एक मिनट अहमद साहब रुको, एडम तू बहुत शाना है, तू अंदर का आदमी है, तेरे को मालूम है अहमद जो है ना टीआरपी है। अरे अहमद भाई कल मेरा चैनल है एडम सीकर अलाइव के नाम से मेरा चैनल है। ये देखिए अपनी अहमद भाई ये देखिए ये एक मेरा चैनल है, इसका नाम है एडम सीकर अलाइव चैनल है मेरा, ठीक है। आप ना कल वहां पे जरूर जुड़िएगा, वहां पे पता है क्या बड़ा मजेदार काम होने लगा कल। वहां पे जो मोहम्मद साहब को शैतानी आयतें आई थी ना, जब मोहम्मद साहब ने बुतों की पूजा की थी, ठीक है, तो वो वाली आयतों के ऊपर कल बात होगी वहां पे। देखें ये चैनल है मेरा, ये देख लें, इसको आपने फौरन से पहले जो है ना सब्सक्राइब कर लेना है। कल ये देखें सलमान रिश्ती शैतानी आयतें, उसका पार्ट है, तेरे चैनल आइएगा। मोहम्मद साहब ने ना अल्लाह उज़्ज़ा और मनात की परस्तिश की थी सर वहां पे। कल इस चैनल पे जरूर जुड़िएगा, मैं आपको स्पेशल इनटेक करूंगा और फिर हम आगे और गाली भी दोगे तो हम सुन लेंगे, हम सुनेंगे, गाली भी दोगे तो सुन लेंगे। हाँ आप हमें शैतान कहिएगा, जो मर्जी कहिएगा, कोई मतलब तू करिएगा जी। तेनू कोई साहिल भाई वो केला है, लोगों को गुमराह करने है, तू होया वे लोगों भी करने आवे। माशाल्लाह सर, जिस तरह मोहम्मद ने लोगों को जन्नत में डाला, मैं भी जन्नत से निकाल रहा हूँ। अपना अहमद साहब जाते जाते केला लेके अच्छा जाओगे? वही साहिल भी कह रहा था, पेड़ा है, आप ले लो, आपके फिर चढ़ाई वाला निकाला आपने। इसकी नोक देख के भागता है, देखो भागेगा नोक देख कर। तू मेरे सामने हो, यार तेरा केला भी विंगा ही गई साहिल, तेरा केला भी विंगा है, केड़ा केला है तेरा। तड़पा के मारता, तू सामने आ जाए साहिल तो तरपा के मारेगा, तू टेढ़ा केला खाता है कमीने। केले इनके लिए मैं बोला था, मैं सीधा कर दूंगा, ऐसा बोला था। ओ बाप रे बाप। अहमद भाई कल जुड़ना, अहमद भाई कल खा लिया ना। अहमद भाई कल आना आप एडम के चैनल पर, आऊंगा मैं, ठीक है। एडम सीकर लाइव पे जरूर आना, कल शैतानी आए थे 9 बजे, ठीक है। आएगा वो बोल दिया आएगा। वहाँ एडम सीकर वहाँ